Good evening, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Hi, guys. What's up? What's going on? Hey, Deepali, congratulations for your new house. Thank you, ma'am. Your room looks beautiful. And today, Thank you, I think sir. Rajesh is also joining from some other background, huh? Are you at home today? Yes, Very sir. This is the card room. This is the card room. okay, very good. Okay. So, guys, tell me, how much did you practice yesterday? Hmm? Now I just write down the sentences for You wrote. the I wrote the sentences. I wrote the sentences so that Good. we will vote Mike and me. Okay, very good. Rajesh has also sent his homework to me, so I've checked that. I'm going to discuss it today. Jatin, what about you? Revant? And yes, Revant has also shared the sentences with me. So I'm going to discuss some doubts here as well. Ishan, I haven't received your homework, I think. I have not done that. Okay. Little busy. Okay, you were a little busy. But today I'm going to ask you some questions and you all are going to answer using the past simple and the present simple tenses and the future simple tenses as well. So all the simple tenses are over. You're going to answer my questions in those tenses only. Okay? So because the problem is when we write, we get time to analyze. Okay, verb की first form लगेगी, second या third, etc. But at the time of speaking, हम instantly वो decide नहीं कर पाते हैं mind में, and we end up speaking wrong, right? So be ready with all your minds and everything. आपको कहीं cheating या इधर उधर देखना नहीं है. So no cheating. Okay, आपको बिल्कुल वैसे ही बात करनी है जैसे हम लोग generally लोगों से मिलते हैं तो बात करते हैं. ठीक है? So I'll ask questions. This is a warm up, and then we will continue to learn the continuous tenses today. ठीक है? आज हम लोग continuous tenses start करेंगे. अब सिंपल टेंसेस की बात करते हैं तो हमने ये डिसाइड कर हम ये याद कर चुके हैं दैट सिंपल टेंसेस में हम लोग सिर्फ दो वर्ब फॉर्म्स यूज करते हैं. विच आर द टू वर्ब फॉर्म्स? क्विक First and रिस्पॉन्ड. second time. Yes, very good. First and the second, just a second. Admit. Okay. Yeah. So the first and the second form, right? Okay. Now, what are the tenses where we use the first form of verb? Instant आंसर करना जो सबसे पहले करेगा सबसे पहले वही इंसान Present simple. Can you repeat? Can you simple? My question is which tenses take the first form of verb? Present simple. Present and future simple also. And Rajesh, how does past simple tense take the first form of verb? Past simple tense. How does past simple tense take the first form of verb? Navdesh. No, sir. Second form. You said. Okay, my question is, we have learned all the simple tenses, yes, and in these present simple, past simple, and future simple tense, only two verb forms are used: first form and second form. Yes, everyone. Okay. Yes. Yes. Now my question is that where do we use simple? I mean, first form, simple form of verb, first form of verb. So I think Sarita, Ria, Dipali, they all answered simple past and sorry, simple present and future. Yes. For example, I go, I will go. So first form of verb is used. But my question, the third question is, how do we use mute yourselves? Mute yourselves. Mute. Rajesh, mute. राजेश आपकी साइड से बहुत शोर आता है तो आप प्लीज म्यूट पे रखा करो जब आपको बोलना हो ना तब आप माइक ऑन करके बोल दिया करो ओके सो माय थर्ड क्वेश्चन इज ध्यान से सुनना हाउ डू वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पास्ट सिंपल टेंस Ma'am, can I? wait Sarita I know you know the answer Ria wait I know you guys know the answer but I'm waiting for some other people as well हम पास्ट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कैसे करते हैं एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल Avdesh, Jatin, ing use करके Avdesh louder.
I gone to the office. ing यूज करके मैम ing यूज करते हैं. पास्ट सिंपल टेंस पूछ रही हूँ मैं, वो तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना. आईएनजी तो कंटिन्यूस टेंस में आता है. I gone to the office. गॉन तो बच्चे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया. मेरे को क्या पता. गो कब यूज करते हैं हम? गो सिंपल फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं. जैसे मैं रोज ऑफिस जाता हूँ. आई गो. Ma'am, I go office daily. आई अवदेश क्या बोला आपने? Didn't like ma'am, didn't use करते. Very good. That was the answer that I was waiting for. Sarita knew the answer, Riya knew the answer, and I know that. But ये guys लोग थोड़ा सा लगता है भूल गए हैं concept. So first form of verb जो है हमारी, जैसे go, sleep, eat, talk, run, जितने भी हम action words use करते हैं उसकी जो first form होती है simple form, वो हम simple tenses में use करते हैं. तीनों में, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में. ठीक है. अभी फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का तो इजी है, हमें पता है, उसमें वही यूज होती है. बट पास्ट सिंपल में कब यूज होती है? जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या हम क्वेश्चन पूछते हैं. मतलब जैसे अवदेश ने कहा, जब हम डिड यूज करते हैं. क्लियर हुआ सब लोगों को? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन वी डू नॉट यूज डिड in the simple past tense, then how do we make sentences? With which form of verb do we make sentences? Second verb. Past. Yes, very good, Sarita. तब हम second form of verb use करते हैं. Yes, we use the second form of verb. For example बनाएं जल्दी से. I did my homework. इस Very जगह हम good. बोल सकते हैं I have done with my homework. No. आपको सिंपल वो have done, have gone is everything in the perfect tenses बच्चे. And अभी हम perfect tenses की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं कर चुका हूँ. नहीं, मैंने किया था. मैंने कल आपने क्या क्या किया था? उसमें से कोई एक चीज मुझे बताओ कि मैंने ये किया था और क्या नहीं किया था, वो बताओ. We did the homework yesterday. Very good. We did the homework yesterday. क्लियर हुआ सब लोगों को? तो did कौन सी फॉर्म है और किस वर्ब की फॉर्म है? रेवंत, अगर आपको पता. तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया. गुड. तो अवदेश, राजेश, जतिन, कोई है आप में से जो मुझे बता पाए कि जो रेवंत ने सेंटेंस बनाया आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, उसमें डिड कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यस राजेश. फर्स्ट फॉर्म. डिड फर्स्ट फॉर्म है. सॉरी, डिड सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म है. किसकी सेकंड फॉर्म है? कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म? डू की. वेरी गुड. अच्छा, अब हमने जो रेवंत ने जो सेंटेंस बनाया कि आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, उसमें इसने ये क्यों नहीं बोला आई डू माई होमवर्क यस्टरडे? क्यों नहीं बोला? डू फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ना फिर उसका. हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगाया उसने? डू सेंटेंस प्रेजेंट के लिए यूज होता है. वेरी गुड रेवंत. ठीक है, क्योंकि डू हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा. पास्ट सिंपल टेंस में हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म. तो जैसे डू की सेकेंड फॉर्म हो गई डिड. Yes. करना. डू मतलब क्या होता है? कुछ भी करना. मैंने ये किया, मैंने वो किया. थर्ड किस में यूज होता है? हाँ, ऐसे ही और जितने भी आपके वर्ब्स आपके माइंड में आ रहे हैं, कोई भी 5 वर्ब्स के बारे में सोचो. थिंक ऑफ 5 वर्ब्स एंड टेल मी द सेकंड फॉर्म्स ऑफ दीज 5 वर्ब्स. कोई भी 5 वर्ब्स सोच लो अपने माइंड में. थर्ड फॉर्म किस में आता है? थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंसेस में, जब हम बोलते हैं ना कि मैं ये कर चुका हूं या मैं ये कर चुका था. मतलब आज मैं अपना सारा काम खत्म कर चुका हूं तो अब मैं फ्री हूं. तो जब चुका हूं, चुका है, हम कुछ ऐसे श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि ये परफेक्टली खत्म हो चुका है काम, तब हम परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं बच्चे. ठीक है. अदरवाइज जब हम सिंपल टेंसेस में बात कर रहे हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, और हम टाइम बताते हैं कि कब किया था, तब हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं विद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अभी 5 वर्ड्स सोच लो अपने माइंड में. थिंक ऑफ एनी 5 वर्ड्स and tell me the first form and the second form, and also tell me when do you use the first form of that verb and what are the situations when you are going to use the second form of that verb. Chalo, everybody write down in your diaries. Ma'am, 5 words. Very good, Riya. Yes. ma'am, can you explain me when those were used in past tense?
was were okay. अभी देखो रिया, it's a very good question. First of all, thank you for keep putting it up. तो गाइस देखो, जब अभी हम एक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, गो, ईट, स्लीप, टॉक, रन, तो ये तो एक्शन वर्ड्स हो गए, मतलब जब भी कोई एक्शन हो रहा है, फिजिकली कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन सिचुएशंस में जब कोई भी काम नहीं हो रहा है, कुछ फिजिकली नहीं हो रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, वो जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने याद किए थे, आई, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बिना एक्शन के सेंटेंसेस में हम इन्हें यूज करते हैं, क्या बताने के लिए, किसी की कोई स्टेट या कुछ भी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सेंटेंस है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वहीं अगर रिया मुझे कहना है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं क्या कहूंगी, She was my best friend. very good, she was my best friend. So it is simple past tense. So simple present, simple past और simple future tense में हम जब कोई main verb नहीं लगाते हैं, when we don't have any action word because we are not referring to any physical activity, what do we use? We use the helping, these auxiliary verbs like is, am, are in the past, in the present simple, and was, were in the past simple, and will be या would be in the future simple. Now I will make some sentences for you and then you will make your sentences. I am an English teacher. I am an English teacher. क्या यहाँ कोई physical activity की बात हो रही है? No. No. यहाँ पे सिर्फ मेरे कुछ स्टेटमेंट, स्टेट की बात हो रही है, मेरे कुछ होने की बात हो रही है. I am an English teacher. You are my students. You are my students. आप मेरे students हो. This is also present simple tense. हम past या future की बात नहीं कर रहे, हम regular की बात कर रहे हैं. Regular situation है कि आप मेरे students हो. Okay. Now in the past, for example, Ria was my favorite student. For example, Ria was my favorite student. Okay, या फिर Ria was in the mall. Ria was in the mall yesterday. Okay, अगर मैं बोल दूंगी Ria watched a movie in the mall yesterday, तो watch मेरा मेन वर्ब हो गया, क्योंकि मैं फिजिकल एक्शन की बात कर रही हूँ, ये भी पास्ट सिंपल हो गया. लेकिन अगर मेरे को एक्शन नहीं बताना, सिंपल स्टेट बताना रिया का कि वो कल में थी, तो मैं सिंपल बोलूंगी Ria was in the mall yesterday. ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? रिया, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? Yes, ma'am. Good. Now coming back to the 5 verbs that you thought of. Okay, starting with let me see who all are here. So we are 10 people here in the class right now. Can I say something? Yes. Actually, after 10 minutes, after 10 minutes, I will be able to off my camera. Okay. Whenever my card has come, Jim. Okay. Turn it off. After 10 minutes. No problem. Okay. All right, guys. So we will start with, okay, since Rajesh, you will be busy later for 5 to 10 minutes. So let's start from the 5 verbs that you thought of. Sorry, can you repeat? Tell me the five verbs that you thought of. 5 verbs. Was. Very good. Watched. Only tell me the first form and the second form. Okay. See, saw. Very good. Gave. Gave. Very good. Come, came. Keep writing them down because you're going to make sentences. Okay, go, went. Okay, all 5 done? Okay, 5 done. Go, went, see, saw, and जो भी watched. Okay, अब आपको क्या करना है राजेश, बैठ के ना इन 5 verbs के साथ with the first and the second form you have to make sentences in the simple present and simple past to tell all of us what are the things that you regularly do or don't do, and what are the things that you just recently did or you didn't do. Clear?
This is the class task. You're going to do it right now. Okay, next. Okay, Deepali, tell me the 5 verbs that you thought of, dear. Ma'am, I will be joining the swimming class this summer. Wait, Deepali. But you have added ing, bache. You have added ing. And your sentence is grammatically correct. But right now, we are just practicing and focusing on the simple tenses. Not on the ings or the has, have, had. So just think of all the situations. Just tell me the verbs and the first and the second form of the verbs. For example, Rajesh has said, like he has told me, watch, watched, go, went, see, saw, like that. Okay, take your time. Ria, next. Ma'am, build, cried, Cry. Slowly. Built, cry, cried. Next. moved, Moved. Think, thought. Very good. slept. Keep, kept. Okay. Now with all these verbs in the first and the second form, Ria, you know what to do, right? Just make your sentences and tell all of us the things that you regularly do or don't do and the things that you did or didn't do. Next, Ishan. Keep raising your hand. Ran, wake, woke, Very good. sleep, slept, Sleep, slept. drink, drank, Drink, drank. play, played. Play, played. Very good, Ishan. So you also have a list of 5 verbs and everybody will try new verbs, okay? Different verbs from each other. Okay, Ishan, start making your sentences. Everybody, I hope you're writing your sentences. Next, who's next? Sarita? हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के लिए लिखने हैं ना सेंटेंसेस. हाँ जी, yes. और वो भी रियल लाइफ सेंटेंसेस अपनी लाइफ के रिलेटेड कुछ. Yes. या अपनी फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड. ओके, अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग गाइस, सब्जेक्ट में सिर्फ आई मत यूज करना. ट्राई टू यूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स. 5 सेंटेंसेस में 5 वर्ड्स हैं आपके पास, तो कम से कम कभी आई सब्जेक्ट बनाओ, कभी यू, कभी दे, ही, शी, इट, वी, कुछ भी बनाओ, ठीक है? नॉट जस्ट आई. ओके, सारिता, योर टर्न. Leave, left, leave. Leave, left. Only tell me the first two forms. Okay. Fly, flew. Fly, flew. Very good. Very good. And okay, Walk. done. Walked. Very good, Sarita. Now, Sarita, quickly think of 5 words, okay, and make your sentences. Next, Jatin. Acted. Very Ate, good. ate. Dressed. Very good. Followed. Very And good. fried. Fried. Very good, Jatin. Now make sentences with these 5 words. Okay, next. तो बेसिकली आई होप आप लोगों को कितने सेंटेंसेस बनाने हैं पता लग गया. कम से कम 10, क्योंकि 5 तो आपके प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में हो गए और 5 पास्ट सिंपल फॉर्म में हो गए, तो आपको टोटल 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. चाहो तो एक पैराग्राफ फॉर्म में बना दो, स्टोरी टाइप्स, या फिर अलग अलग बना दो. इट्स अप टू यू, हाउएवर यू फील कंफर्टेबल. ओके, नेक्स्ट, अवधेश. I think he's busy. Mine, like, No. Wait, Sarita. Yes, Avdesh. me, mine, like, have, had, passed, leave, lived. Lived. Very good. Okay, very good. Okay, सारे मेरे साथ बोलेंगे. I live in India. I lived in India. I live in India. Very good. I live in India. I live in India. Okay, very good. Okay, अब मैं जिसको बोलूंगी वही बोलेगा. दीपाली, बोलो. I live in India. I live in India. India, very good. Revant, I lived in India. lived नहीं, अभी भी तो रहते हो. I live in India. Live.
मेरे को लिफ्ट सुने गया. Okay, Avdesh. I lived in India. Sorry, I live in I- India. लिव है. ओके, तो लिव का लिव होता है और लीव होता है. प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है. उसमें आई लंबा है तो लीव है. अगर लीव बोलोगे तो वर्ड बिल्कुल ही अलग है ना, उसका मीनिंग भी अलग है, छोड़ना, और लिव मतलब रहना. तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. नेक्स्ट, नाउ सेंटेंसेस. ओके, इज एनीवन लेफ्ट who hasn't told me this? Sorry, what is the meaning of lift? First form, lift. Live means रहना. No, I lift, live. lift. Lift उठाना. What is the first form? First form. Lift, lifted. Okay, please lift me a little. I can't reach the second floor of the cabinet. Okay, good. Okay, guys. Or how much weight? So Rajesh, I can ask you, how much weight can you lift? Okay, how much weight can you lift? Okay, yes, Sarita. Yes, Sarita. Okay. Okay, sure. Everyone, keep quiet. I want all of you to quickly send your sentences in the WhatsApp group right now. Right now. Ma'am, I have not done with it yet. अगर Ma'am, notebook I में लिखना, didn't think of any verb. then it's your loss, baby. You will lose it. If the class is going on and I am asking you to do something, if you're not doing it, it's your loss, not mine. Okay. Cool. Ma'am, and Now, anything is not coming. quickly send me the picture of the sentences that you people have made right now in the WhatsApp group. If you haven't made it yet, make it now. Make it now. Don't say, ma'am, I haven't thought of verbs. I'm sorry, but you have to think of the verbs. 2024 line. मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत क्लियरली बोला है, 5 वर्ब्स के बारे में सोचो और 5 वर्ब्स की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के बारे में सोचो और फिर सेंटेंसेस बनाओ. उसके बाद नहीं बना रहे हो, आई डोंट वांट यू टू डू इट एनी मोर देन. मुझे स्टूपिड बातें कोई नहीं करेगा क्लास में, मैंने तो सोचा ही नहीं. मैं बहुत पोलाइट हूँ, बट मेरे को डोंट पोक मी. एंड यू गाइज आर वंडरफुल. कोई भी आके एकदम से इस ग्रुप को खराब करना चाहेगा, आई वोंट लेट दैट हैपन. नो न्यूसेंस. चलो जी, अब मैं पीपीटी खोलती हूँ प्रोनाउंस की, ठीक है, एंड हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोनाउंस और साथ ही साथ कंटिन्यूअस टेंसेस. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी. फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंसेस. एंड आई होप इसके बाद आपको सिंपल टेंसेस में कुछ इंग्लिश में, क्योंकि अब क्या है ना, यू आर रेडी टू टॉक 80% इन इंग्लिश. यू वोंट बिलीव इट, बट यस, दैट्स ट्रू. Let me read your answers. Very good, Ria. I cried yesterday. I don't have any laptop. I make food every day. I tried to learn English. Very good, Ria. Correct. Very good. Ishan, very good. You're a very bright student. I like the way you respect these classes. Good boy. So
सो सी गाइस, ग्रुप में देखो ईशान ने कितने नीटली सेंटेंसेस बनाए हैं. इट्स रियली नाइस. आई रन ऑन द ग्राउंड, आई रन ऑन द ग्राउंड. टुडे आई वेक अप अर्ली, आई विल वेक अप अर्ली. बच्चा एक सेकेंड, ईशान आप अगर मुझे सुन रहे हो, ओनली ईशान विल अनम्यूट, बाकी सारे म्यूट पे रहेंगे. तो ईशान आपने लिखा है टुडे आई वेक अप अर्ली, ठीक है, मतलब आज मैं जल्दी उठा, आप ये कहना चाहते हो. तो ये एक्शन तो पास हो चुका है. वेकअप नहीं, वोकअप लिखा है. अच्छा वो ओ है, हाँ. ठीक है. Then it's correct. I woke up early. I will wake up early tomorrow या day after, whatever. Very good. Neha will sleep early. अच्छा, इसके आगे ना कोशिश करो कि टाइम भी मेंशन करो ताकि और लॉजिकल हो जाए सेंटेंस. जैसे वो नेहा डिस्क्राइब करना है मतलब. हाँ, थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है. Yes. नेहा slept early. अब early कब? नेहा slept early when. So you have to mention the time. नेहा will sleep early when. Tommy drink the water. Drink the water. Okay, ये That's इंस्ट्रक्शन exclamatory बेस्ड है. ये इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, आपने वैसा बनाया है ना कि आप टॉमी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो. टॉमी Yes. ड्रिंक द वाटर. गुड. तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद ना जो डी है वो कैपिटल होगा. टॉमी ड्रैंक द वाटर. वेरी गुड. ही, अच्छा अगर आपको प्रेजेंट सिंपल में बोलना है कि टॉमी पानी पीता है, देन हाउ आर यू गोइंग टू से इट इन इंग्लिश? Tommy drinks water. Very good. Okay. He is going to played. No, he is going to play. वो गलती से ed लगा दिए है. कोई बात नहीं. He is going to play is correct, but it is present continuous tense. मतलब वो जा रहा है खेलने. Yes. या फिर वो जाएगा खेलने. Good. He played cricket. Correct है. Okay. Very good. Next किसने बनाया? Correct, Dipali. Very good, Dipali. I will learn guitar this weekend. She might go to the park tomorrow. He may visit you on Monday. I would send you the project today. Very good, Dipali. All your sentences are grammatically 100% correct. Thank you, miss. Yes. Acha, one more thing, Dipali. Since you have written all the sentences in the future simple tense, now try some more in the present simple and past simple as well. Yes, Alina. So finally, by the way, guys, why is Deep not attending? Ma'am, Deep is finger is very much Injured? paining. That's why he said that to tell ma'am I will not able to come Okay. take classes. Okay, Jatin. First of all, very good. आप believe नहीं करेंगे, but grammatically, whatever you said, all the sentences were correct. You were able to communicate the message in English. One thing, I want you to repeat everything again and tell me without fumble, without repetition of words, जो आपकी आदत है. Ma'am, Deep said that नहीं, जब आए ना अंदर से तो आपको 1 2 3 काउंट करना है, माइंड में पॉज लेना है कुछ सेकंड्स का. Deep said that tell to ma'am that his finger is paining too much and he is going to take suggestion from the India doctor. Okay. And he is Okay, saying also that sometime I will come to India for the injury. for the okay, fine, for the treatment. Yes, All right. He also told that. He also told me that. ठीक है, गुड है यार. जतिन बहुत अच्छे से ग्रामर तो पकड़ में आ गई है, बट हर एक दो वर्ड्स के बाद में जो फिलर की तरह निकलता है ना हम लोगों के, उसको इग्नोर करना है. उसको अवॉइड करने का एक तरीका ये होता है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो जब आपको लगता है कि आने वाला है, उसी वक्त एक पॉज ले लो. उस वक्त पॉज ले लो. चाहे बोलते वक्त आपको लगेगा कि मेरा लंबा पॉज है, बट वो सुनने वाले को लंबा नहीं लगेगा. ठीक है.
तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी बोलते हो, 2 वर्ड्स के बाद अब अ निकलने से पहले ही रुक जाओ, पॉज, जस्ट Ma'am, पॉज. I send you the sentences. वेरी गुड रेवंत, लेट मी चेक. रेवंत हाँ आ गए, अवधेश के भी आ गए सेंटेंसेस और अपना जतिन के भी आ गए. वेरी गुड. I act on my camera. Very good. I acted in a Movie last night. okay. I acted in a movie last night. Good. He baked the cake for me. Bake मतलब करता है ना? Yes, ma'am. तो bakes होगा because he sheet के साथ में s लगेगा. He bakes the cake for me. और आगे मेंशन करो कि कब करता है. He bakes the मैम cake वो for द की जगह अ नहीं होना चाहिए. किसकी जगह बचे? अभी उन्होंने बेक्स में एस नहीं लगाया, तो ही बेक अ केक फॉर मी, ऐसा सेंटेंस बन सकता है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप हर रोज कोई पर्टिकुलर केक बेक नहीं करते हो, है ना. तो जब मैंने आपको बताया था जतिन लास्ट क्लास में कि द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब हम उसको एक ऐसे नाउन के लिए यूज करेंगे जब हम कोई पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे होते हैं. तो जैसे अगर आप बोलोगे ही बेक्ड द केक फॉर मी, तो मतलब आप पर्टिकुलर केक की बात कर रहे हो कि उसने पास्ट में मेरे लिए ये केक बनाया था. बट अगर आप रेगुलरली बात कर रहे हो कि ही बेक्स केक्स फॉर मी एवरी वीकेंड, तो मतलब हर वीकेंड वो आपके लिए केक्स बेक करता है और हर हफ्ते कुछ अलग अलग केक्स के फ्लेवर्स बेक करता है, राइट. तो यहाँ पे द नहीं आएगा. Okay, ma'am. शी बेक्ड द कॉफी फॉर माई सन, यहाँ पे भी द की जरूरत नहीं है. दूसरी चीज, कॉफी हम बेक नहीं करते, मेक बोल सकते हो. शी मेड कॉफी फॉर माई या सन. प्रिपेयर भी बोल सकते हैं ना. शी प्रिपेयर्ड कॉफी फॉर माई सन, है ना. शी या फिर प्रिपेयर्ड, केक बोल सकते हैं. क्या कर सकते हैं? केक. हाँ, बेक्ड द केक बोल सकते हैं. शी बेक्ड केक फॉर माई सन. वेरी गुड. आई ड्रेस फॉर द पार्टी. ओके. अगेन इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए आप लोग टाइम मेंशन करो, थोड़ा लंबा सेंटेंस बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रेस फॉर द पार्टी व्हेन, तो माइंड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है. व्हेन, कब आप ड्रेस करते हो पार्टी के लिए. तो बोलोगे आई ड्रेस फॉर द पार्टी, और द नहीं आएगा अगेन यहाँ पे. ठीक है. आई ड्रेस फॉर पार्टीज एवरी वीकेंड, मैं हर हफ्ते पार्टीज के लिए रेडी होता हूँ. ही ड्रेस्ड टू गो टू मैरिज यस्टरडे, ये सही है. मतलब आपका पास्ट सिंपल टेंस क्लियर है ज्यादा जतिन, लेकिन आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में और सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है. करण फॉलो द रूल्स ऑफ क्रिकेट. देखा, अब फॉलो नहीं आएगा, फॉलोज आएगा. करण करता है. Yes, I followed the gym instructions. Very good. So all the past simple tenses are correct, but present simple tense में make more sentences. Okay, ma'am. Okay, next किसका है? Okay, this is रेवंत. Present simple tense में I am going to office, ये सारे तो आपके मैंने बता दिए थे रेवंत कि ये नीचे सारे सबसे नीचे. हाँ सबसे नीचे वाला है ना. I am, क्या लिखा है? I am. I ran the whole marathon. Okay, very good, correct. I ran the whole marathon. I run. आप थोड़ा रीड करोगे प्लीज अपने सेंटेंसेस रेवंत? I run in the playground. करेक्ट. तीसरा, I always think about solutions of my life problem. वेरी गुड. I think about the war yesterday. Okay, now think, and the second form of think is Thinked. thought. Think, thought. Okay. Sure. So I thought about the war yesterday. Next, I sit in the bench. I sit in the bench. Bench के अंदर नहीं, bench के ऊपर. I sit on the bench. या I sat on the bench. I sat on the chair yesterday. Very good. He tried the problem yesterday. Correct. He was trying to play. He was trying, नहीं, he will try to play. He will try to play. Future simple tense. He will try to play. Okay, आपको सिर्फ सिंपल टेंसेस बनाने थे, सिंपल फॉर्म में. और मुझे अगर नहीं पता था, मेरे को लगा कुछ भी बनाना था. ध्यान से सुना करो, ठीक है. क्लास में जब मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हूँ ना रेवन, थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश करना अब, ठीक है. जैसे बाकी सब मेरा लैपटॉप का साउंड थोड़ा अच्छा नहीं है. साउंड का प्रॉब्लम है. अच्छा ठीक है, ओके. सरिता,
वेरी गुड सरिता। सरिता आपको भी रीड करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि ना आपका वो, बच्चे कह रही हूँ सॉरी, आपका वो पेंसिल से लिखा है ना, तो मेरे को दिख नहीं रहा Yes, ma'am. Okay, ma'am. I will read for you. Yes, yes. So first sentence is on leave left. The party is at 6 p.m. So left house before 5 p.m. Mm-hmm. Good. Mistake, I guess. And second is I leave my house at 9 o'clock every day for office. Good. And then the second word was buy and bought. On Diwali, I bought a dress which is vibrant in color and everyone liked it. And the second one Very good. is let's go and buy some grocery. Now the next which I use walk and walked. So walk every day. It's good for everyone to keep themselves healthy. And Very the second one is on Thursday in Ram Navami occasion. There was rally in which I walked so much that I got tired. Very good. You know what, guys? The best sentences that I have received today are from Sarita. What do you think, guys? What do you think? Yes or no? Yes, एक ma'am. तो यार वो बच्चों वाले छोटे छोटे से 3 वर्ड के सेंटेंस नहीं बनाए उसने, थोड़ा उसने अच्छे लेवल के सेंटेंस बनाए हैं कि वो लॉजिकल भी लग रहे हैं और बहुत रियल लग रहे हैं, ठीक है? नहीं तो आप लोग पता नहीं कैसे कैसे बना देते हो. I sat on the bench yesterday. यार आपने भी है ना, कोई कुछ भी बना रहे हो आप लोग, बट ठीक है, नहीं, इट्स ओके. जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो इट्स फाइन, बट कोशिश करें कि जो हम रेगुलर लाइफ में बोलते हैं ना, रेगुलर लाइफ में बोलने में प्रॉब्लम आती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं, यही मौका है, अभी बोलो, ठीक है? चलो. I do not talk in regular life more much. But you want to, right? You want to talk. That is why you are attending these classes. That is why your mom has paid the fee, so that मेरा बच्चा बाहर निकल के confidently इंग्लिश में बात कर पाए. तो अगर करना चाहते हो तो अपने माइंड में हिंदी में ही वो चीजों के बारे में सोचो जो आप लोग करते हो रियल लाइफ में या की थी रियल लाइफ में, फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो इंग्लिश में कि अब इसको मैं कैसे बोलूं, इसी बात को मेरे को इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, या पूछना है किसी से तो मैं कैसे पूछूंगा. Sorry to interrupt you, but I have one query. Like when we use he, she, it, then we use S in verb form, first form. Okay, she goes to office like something. When we use name, then also we have to use S in that sentence. Yes. For example, Sarita goes to work every day. Okay, ma'am. Yes. Cool. Yes. Okay. Now I'm presenting you the PPT. Now, right now, I want all of you to turn on the cameras. I'm going to take a picture. चलो, come on. हाँ, ठीक कर लो बाल अवदेश. इतने छोटे छोटे फोटोज दिख रही हैं सबकी, क्या ही समझ में आएगा? हाँ, everybody, come on. Dipali, Ria. You know, it's a memory for me. Yes. Okay, cool. Jatin, इधर देखो. Say like this, do like this. Dipali? Good. Very good. Perfect. Awesome. So now I'm going to share the presentation. Are you able to see this presentation? Yes. Okay. Now these are the objectives. Okay, we have already done a lot of revision of the simple tenses. Now we are not going to move into that, but it's your time, it's your responsibility now to keep revising it up. Now the concepts in the pronouns chapter are somewhat like this. I mean, there are so many pronouns, right? We just know the simple pronouns I, you, we, they, etc. But now we've got different types of pronouns that for general knowledge you should all know at least. For example, personal pronouns, emphatic pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns, relative, subject-object, demonstrative, indefinite, reflexive, possessive, interrogative, and many more. So these are some important pronouns that you all must know.
Let's start with this exercise. Now here I think you can easily fill the blanks. Come on everyone, fill the blanks please. This is Henry. He comes from Scotland. Ma'am, may I? Yes. This is Henry. He comes from Scotland. Look at Jack and Swan. They are walking. This is a This football. is a football. Oh, It is football. blue You and have. Which is blue and white. It is blue and white. Good. Okay, just give me 1 second. I'm Chalo. Yes. These are the answers. He, they, it. Cool? Got it? Yes. All right. Now, what are pronouns? Everyone is clear? Yes or no? We all know this. That can replace a noun or noun phrase. Yes, we all know this. Yes. Yes. Words that replace the nouns to avoid repetition. Yes. Now, these are the kinds of nouns. Let's start from the first one. Okay, how many of these do you know? Like, if I asked you to give me an example of personal pronouns, will you be able to do that? Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. I can't. Okay. Personal pronouns are simple. Simple pronouns that we use to talk about first, second, and third persons. Like I, you, we, they. Okay, all of these. Me, his, him, our, etc. These are all personal pronouns. Now again, जैसे nouns में था ना you remember कि अगर कोई noun common है तो वो concrete भी हो सकता है ना? या अगर कोई noun किसी एक particular form का है तो वो दूसरे form का भी हो सकता है कभी-कभी. Similarly, pronouns में भी होता है ऐसा. If there is a pronoun and you call it a personal pronoun, it can also be some other kind of pronoun depending upon the situation of the sentence. Clear हुआ? अगर मैं कहूँ I am a teacher, यहाँ I is a simple personal pronoun which I am using for a person, which I am using for myself. That's it. First person, second person, third person. तो इसीलिए इसको personal pronoun कहते हैं क्योंकि ये first person, second person या third person जो 3 persons होते हैं ना उनके लिए यूज किया जाता है. It's very simple. Emphatic pronouns कौन से होते हैं? आप लोगों ने बहुत बार यूज किए होंगे myself, yourself, themselves. Yes, himself, herself. इन सबको हम क्या कहते हैं? Emphatic pronouns कहते हैं और इन्हीं सबको हम reflexive pronouns भी कहते हैं. Now, when do we call them emphatic and when do we call them reflexive? That's the question. Yes. Now, see guys, think of any situation when you want to say कि ये काम मैंने खुद किया. I did this myself. मैंने अपने आप किया. या उसने खुद अपने आप को पार्टी में इनवाइट कर लिया. या वो खुद अपने घर से यहाँ तक चल के आई अकेले. She herself managed to come here alone. तो all these kind of situations जहां आप कोई एक्शन की बात बता रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि खुद से किया, उसने, मैंने, तुमने या किसी ने भी खुद से किया, अपने आप किया, उस सिचुएशन में जब हम yourself, myself, themselves, etc. यूज करते हैं, we call these pronouns emphatic pronouns. क्यों emphatic? इजी याद करने के लिए कैसे आपको याद करना है इसको? एम्फेटिक वर्ड निकला है emphasize से. मीन्स व्हेन यू वांट टू emphasize on something कि मैंने ये खुद किया है, आप जोर डाल के बोलते हो. होता है ना ऐसा बहुत बार. मैंने अपनी आंखों से सुना, मतलब सॉरी, मैंने अपनी आंखों से देखा. राइट? नाउ यू गाइस मेक सेंटेंसेस कि तुम्हें पता है मैंने खुद सुना उनको लड़ते हुए, उनको बात करते हुए, या फिर मैंने खुद सुना कि कल हमारी छुट्टी है, etc. So when you want to emphasize on something that you did or when something was done by someone else. For example, the queen herself attended the party. The cat opened the door itself. अभी itself क्यों बोला? क्योंकि हम animals के लिए it use करते हैं. I heard the lie myself. Make sentences with emphatic pronouns, guys. I did my homework I did homework myself. Very good, Ishan. I did my homework myself. Perfect. Next. Ma'am, I played football myself. Wait, one by one. Yes, Sarita. okay, so we always
we always push our mom to sign her document by herself only. Very good, Sarita. Perfect. Next. I played football myself. Very good, Revant. Next. Yes, You Ishan, have continue. to do your work by yourself. Very good, Ishan. Next, Dipali. Then I clean my room all by myself. Very good. Avdesh. अभी हम कौन से टेंसेस फॉलो कर रहे हैं? सिर्फ सिंपल टेंसेस Present. सेंटेंसेस बनाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाएंगे. Yes. ठीक है. मेक सेंटेंसेस. चलो. आपको टेंसेस नहीं भूलने हैं. ये तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों याद कर रहे हैं? ताकि हमें एक बहाना मिल जाए सेंटेंसेस बनाने का और हमारी नॉलेज भी कंप्लीट हो जाए. आपको लगता है ये सब आपको कभी काम आएगा? आगे कोई एग्जाम देने बैठ रहे हो आप, जिसमें पूछा जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, लेकिन इनके थ्रू आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दैट यस आई नो ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड आई नो ऑल द टेंसेस. सो टेंसेस में आप सेंटेंसेस बनाओ, मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हुए आप सिंपल टेंसेस में सेंटेंसेस बनाओ या कंटिन्यूअस टेंसेस में बनाओ. चलो, ये वाला क्लियर हुआ. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकेट करना क्या होता है? कि मैं अगर आपको प्यार करूंगी, आप भी मुझे बदले में रिस्पेक्ट करोगे. यस और नो? रेसिप्रोकेट करोगे. अगर मैं आपको बेवकूफ बनाऊंगी तो आप भी मेरे को फिर बदले में बेवकूफ बनाओगे. व्हाटएवर. तो हम जो भी देते हैं वो हमें मिलता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम प्रोनाउंस को यूज करेंगे तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब होता है कि ए और बी में यही हो रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं वो एक दूसरे को. एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो बी को दिया वही बी ने ए के साथ किया. राइट. फॉर एग्जाम्पल, जब दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी, तो हम कौन से रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यूज करते हैं? ईच अदर. ईच अदर हम सिर्फ दो लोगों में यूज करते हैं. कहते हैं ना ईच वन ऑफ यू, मतलब दो लोगों में से बात हो रही है, ईच. और जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो हम कैसे बोलते हैं? वन अनदर. फॉर एग्जाम्पल, पीटर एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर. तो पीटर हेल्प्ड मैरी एंड मैरी हेल्प्ड पीटर. There are these two people. So reciprocate कर रहे हैं वो अपने एक्शन को. नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है We sent one another Christmas cards. यहाँ पे one another से हमें पता लगता है कितने लोग हैं? दो से ज्यादा लोग. दो से ज्यादा. For example, we sent them a Christmas card and they sent us a Christmas card. तो इसको हम दोबारा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट? पीटर हेल्प्ड मैरी एंड मैरी हेल्प्ड पीटर. लेकिन हम इसको अच्छे से इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? बाय यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नाउ मेक सेंटेंसेस इन सिंपल टेंसेस और कंटिन्यूअस टेंसेस यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउन. कम ऑन. बनाओ. Shyam and Raju helped each other. करेक्ट. बिल्कुल सही है. Me and my friend played each other. My friend and I helped each other. Babu Rao and Raju done each other's homework. My mother-in-law and I each other every day in kitchen. My mother-in-law and I help each other. Okay, I correct. help each other. Correct. Next. My brother and I help to learn English each other. Okay, very good. Dipali. Then me and my grandma goes to work every day. My grandma and I go to park. Go, not goes. क्या हुआ दीपाली? भूल गए सब कुछ?
Please revise at home. I understand you were shifting and there was so much happening in your life, but now that you are settled, सारी recorded sessions एक बार देखना, नहीं देखना कोई बात नहीं, notes पढ़ो, PPTs में से समझने की कोशिश करो and try to understand. अब हम simple tenses में ही लगे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो simple tenses अब खत्म हो गए simple tenses, सिखा दिए मैंने. अब आपकी ड्यूटी है उसको बार बार रिवाइज करके याद करना. ठीक है, आपके पास PPTs भी है, आपके पास recorded sessions भी है. चलो जी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गए, एम्फेटिक प्रोनाउन समझ में आ गए, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गए. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? यहाँ पे भी टाइटल में ही, टाइटल को समझो पहले. रिलेटिव मतलब कोई रिलेशन की बात होगी, एक दूसरे से रिलेट करना. हाँ, तो यहाँ पे हम इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, व्हाट, विच, दैट एक्सेट्रा, उनको हम एज क्वेश्चन नहीं यूज करते, उनको हम एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं. कैसे? For example, the women who called earlier didn't leave a message. अब जो वर्ड who है ये क्या कर रहा है? ये उस सब्जेक्ट को, हमारी women को रिलेट कर रहा है हमारे बाकी के एक्शन से. मतलब वो औरत जिसने कल कॉल किया था कोई मैसेज नहीं छोड़ा, तो जिसने, ये वाला वर्ड हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. क्यों? बिकॉज इट इज रिलेटिंग द सब्जेक्ट, द डूअर, विद द एक्शन ऑफ द सेंटेंस. क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मैम एक बार फिर से बताइए ना, ये अच्छा. एग्जांपल्स मतलब समझ में नहीं आ रहे. हाँ, आप इन सेंटेंसेस को रीड करो एक बार. द वुमेन हु कॉल्ड अर्लियर. अब जो वर्ड हु है ये किसको रेफर कर रहा है? विमेन को रेफर कर रहा है. और विमेन को किस तरीके से रेफर कर रहा है? उसको रिलेट कर रहा है एक्शन से, यस, प्रेडिकेट से, राइट? ऑल द डॉग्स दैट गॉड अडॉप्टेड टुडे विल बी लव्ड. जो दैट वर्ड है वो रेफर किसको कर रहा है? हमारे नाउन को कर रहा है, डॉग्स को कर रहा है. मतलब यहाँ पे ऑल द डॉग्स सब्जेक्ट हो गए हैं. हाँ जी. और बाकी गॉड अडॉप्टेड टुडे विल बी लव्ड प्रेडिकेट हो गए हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या जी कि एक शब्द जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट. रिलेट करता है, उसको रिलेशन बताता है ना, कि वो डॉग्स जिनको अडॉप्ट किया गया. तो वेरी गुड. ठीक है. माय कार which is nearly 20 years old still runs well. Again वही चीज हो रही है ना, which जो वर्ड है वो रेफर कर रहा है हमारे नाउन को, मतलब हमारे सब्जेक्ट को, और रिलेट कर रहा है बाकी के प्रेडिकेट से, उस एक्शन से जिसकी बात हो रही है कि किसने वो किया. Now make your sentences. The cat who ate the fish last night ran away. Very good, absolutely wonderful. The cat who ate the fish या which ate the fish. अच्छा, who जो है ना, who हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, who. ठीक है. which और that जो है ये हम चीजों के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. मैम प्रेडिकेट मींस, या प्रेडिकेट का मतलब होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है ना, तो वर्ब फ्रेज जो पूरा होता है, वो जो पूरी लाइन, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. जिसके ऊपर हमारा, जहां पे ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद, जिसके ऊपर हमारा एक्शन अप्लाई कर रहा होता है. मतलब सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, वर्ब के आगे का हिस्सा, दैट इज योर प्रेडिकेट. Sentences, come on. I'm just trying to look for my, just a second. Okay, ma'am, I understand. Oh, 4 minutes to go, guys. आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबको पता है. सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन, जो एक्शन करता है, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन होता है. मीन सब्जेक्ट इज द एक्शन डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज द एक्शन रिसीवर. इनके प्रोनाउंस कैसे होते हैं? अब मतलब जो भी हु आता है ना, लाइक ही, शी, इट, दे, वी, दीज आर ऑल द सब्जेक्ट्स. एंड जो हुम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिम,
her, me, them, you, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। ये सारे मिलके प्रोनाउंस पर्सनल होते हैं, यस और नो। सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन किया था। पर्सनल प्रोनाउन में सारे आ जाते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, देम, योर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का मतलब हुआ ऑल द प्रोनाउंस दैट रेफर टू हु मीन्स द सब्जेक्ट, who did the action or who does the action or who will do the action. So जो who है आपके सेंटेंस का, वो सारे प्रोनाउंस आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ लिखे भी हैं आई, ही, शी, वी, दे। और whom जो होता है वो होता है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये वाला बहुत सिंपल है, जैसे me, him, her, us, them. Make sentences with who and whom. For example, with subject and object pronouns. For example, he gave me some flowers, or he gave his favorite book to me. He gifted his favorite book to me. तो me हो गया मेरा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और he हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ I gifted my favorite book to him, तो I हो गया मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन और him हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। My नहीं होगा, not my. माय मतलब मेरा, मुझे नहीं। तो ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट मतलब डूअर और गिवर ऑफ द एक्शन। गाइस समझ में आया ये चीज? यस। तेरा मी भी सब्जेक्ट है ना? हाँ जी, मी भी सब्जेक्ट है ना? मी इज द ऑब्जेक्ट बच्चे, क्योंकि आप कभी भी सब्जेक्ट में मी नहीं बोलते, ताकि जैसे आप लोग बोलते हो ना, तो खुद को रिलेट कर रहा है ना। हाँ, जैसे आप बोलते हो ना मेरा दोस्त और मैं, मेरा दोस्त और मैं मूवी देखने जाएंगे कल, तो इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? जनरली आप सब लोग गलत बोलते हो, माई फ्रेंड एंड मी, या मी एंड माई फ्रेंड विल गो टू द मूवी टुमारो, राइट? मी एंड माई फ्रेंड विल वॉच अ मूवी टुमारो, तो वो गलत है। मी जो है कभी भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होता है, तो आप उसे सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं कर सकते हो। तो मैम उसको आई बोल सकते हैं हाँ, की जगह उसको आई बोलना होता है, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। लेकिन मोस्टली इंडिया में ये सब लोग गलती करते हैं कि हम लोग क्या बोल देते हैं, मी एंड माई मदर, मी एंड माई फादर, मी एंड माई फ्रेंड आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर, तो वो नहीं बोलना है, माई फ्रेंड एंड आई आर हैविंग। और यहाँ पे भी आप आई को बाद में लगाओगे, आई को पहले नहीं लगाओगे। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू वॉच मूवी। वेरी गुड, इट्स 100% करेक्ट नाउ। यहाँ अगर आप बोलोगे I and my friend, then it is wrong. So my friend and I. Yes. Ma'am, You did not give us assignment yesterday. Yes, please repeat, Ria. You did not give us assignment yesterday. Very good. You did not give us an assignment yesterday. You हो गया subject pronoun, us हो गया object pronoun. Okay. And I gave you an assignment yesterday to make sentences. Yes, ma'am. Yes, okay, good. अच्छा गाइज, आज का भी असाइनमेंट सुन लो, क्योंकि असाइनमेंट की बात हो रही है। 3 मिनट रह गए हैं, ये अपने आप ही एंड हो जाती है कॉल। आई कांट हेल्प इट। तो क्या है इसमें, अभी आप लोगों ने कल क्या किया था, जितने भी टेंसेस आप याद कर चुके हो उसमें आपने क्या किया था, सेंटेंसेस बनाए थे। ठीक है, अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी रेडी करनी है, क्योंकि कल है संडे, तो आपके पास टाइम है, कोई ये नहीं कहेगा मैं बिजी था। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनानी है, जैसे बेबीज के लिए बनाई जाती है, छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, उस शॉर्ट्स मैं आपको कुछ एग्जांपल शॉर्ट स्टोरीज भेजूंगी ग्रुप में, जिससे आप हेल्प ले सकते हो कि इस टाइप का मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी रेडी करनी है और नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट स्टोरी सुनानी है, और ग्रुप में भेजनी भी है, या मुझे पर्सनली भेज सकते हो। So next class is all about storytelling. Yes, ma'am. Because हम लोग अक्सर जब भी किसी से बातें करते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, स्टोरीज तो शेयर करते हैं। मैं मेट्रो में गया था, पता है मेरे साथ क्या हुआ, कल ऑफिस में पता है क्या हुआ, हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वहां पता है हम क्या क्या करेंगे। तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जब भी किसी से कुछ बातें करते हैं, तो हम अपनी स्टोरीज तो शेयर करते हैं छोटी छोटी। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, So you all have to make a short story, and in the next class, that is on Monday, you will be narrating your stories. Make sure कि वो बहुत लंबी ना हो. And the target is that in the story, you have to use all the tenses that you have covered in all the forms: positive, negative, interrogative, negative, interrogative, सब कुछ.
मतलब डिड भी यूज करना है, सेकंड फॉर्म भी यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म भी यूज करना है, डू डज भी यूज करना है, हैज हैव भी यूज करना है, इज एम आर वॉज वर, सब कुछ यूज करना है, क्वेश्चन भी पूछना है। तो जैसे स्टोरीज होती हैं, बीच बीच में डायलॉग्स आते हैं ना, और कोटेशन मार्क्स में, आपको वो भी फिट करने हैं उसके अंदर। सो आपको ये होमवर्क करना है, अच्छी सी प्यारी सी कोई स्टोरी बनानी है। कोई भी गूगल से उठा के ऐसे ही नहीं दे देगा गाइस, अगर आप वो करोगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको वर्क करना है इस पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं। हमने कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कर लिए हैं कवर आज? 4. 4.